جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ العزیز جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس سے چند گھنٹوں کے بعد، 10 یا 12 یا 14 گھنٹوں کے بعد 27ویں شب رمضان المبارکہ کی آئے گی، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ یوں تو 21، 23، 25، 27، 29 5 راتوں میں شب قدر کی تلاش کا حکم ہے، لیکن بالخصوص 27ویں شب کا اہتمام اچھی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو آپ آج شام شب قدر آپ منائیں گے تو اس میں بے شمار عبادات کرنے کے احکام ہیں۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں اس میں تہجد پڑھنا ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، لیکن بالخصوص شب قدر میں کسی بھی تاخرات میں ہو یا کل کی 27ویں شب میں ہو، یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھے۔ تو آج میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ اسے بغور سماعت فرمائے، انشاءاللہ یہ بہت کام آئے گا آپ کو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں، صوفیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کو سننے کے بعد اس نماز کو وہی چھوڑ سکتا ہے، یعنی نہیں پڑھے گا جو دین میں سستی کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم پر بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ اور 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے گا، پرانا ہو یا نیا ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ تم نے جو بھول کر گناہ کیا یا جو قصدن عمدن کیا اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ چھوٹا گناہ کیا ہو یا بڑا گناہ کیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ اور پوشیدہ یعنی چھپا ہوا گناہ، یعنی لوگوں کی نظر تو چھپ کر کیا ہو یا لوگوں کے سامنے علانیہ کیا ہو، ان دونوں گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ان 10 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ کس سے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد آپ نے فرمایا صلاۃ التسبیح پڑھا کرو، اور اس کی ترکیب آپ نے اپنے چچا کو بتائی۔ پھر فرمایا کہ یہ صلاۃ التسبیح نماز اتنی اہم نماز ہے کہ اسے اگر ہو سکے تو تم روزانہ 1 بار پڑھا کرو، اور اگر روز نہ کر سکو تو ہر جمعہ کو 1 دفعہ پڑھا کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 دفعہ اس نماز کو پڑھا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا کم سے کم پوری عمر میں 1 مرتبہ تو یہ نماز ضرور پڑھا کرو، ضرور پڑھو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے اس کی فضیلت آپ نے سن لی، تو اب اس کی نماز کی ترکیب کیا ہے؟ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے اس طرح مذکور ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد، یعنی سب سے پہلی جو تکبیر باندھتے ہیں نماز میں اللہ اکبر کہہ کے، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ جب ہم باندھتے ہیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھنا چاہیے۔ ثنا پڑھے، اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پہلے ہاتھ باندھے تکبیر تحریمہ کریں گے، ہاتھ باندھیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی اور سورت ملا لے جیسا عام نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے آپ کو،
सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। दोनों सूरतें पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबे ये तस्बीह पढ़ना है। उसके बाद अब आपको रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबे या 5 मरतबे या 7 मरतबे ताख अदद में आप रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 10 मरतबे यही आपको तस्बीह पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद रुकू से अपना सर उठाएंगे। जब खौमे की हालत में आप होते हैं तो ठहरी हुई हालत में, खौमा की हालत में फिर 10 मरतबे आप यही तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप पहले सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद 3 मरतबे, 5 मरतबे, 7 मरतबे ताख अदद में सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ना है आपको, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप सजदे से सर उठाएंगे और बैठेंगे, जिसको जलसा कहते हैं। दोनों सजदों के दरमियान जो बैठते हैं उसे हम जलसा कहते हैं। उसमें बैठकर भी आप 10 मरतबे यही तस्बीह पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप फिर दूसरे सजदे में जाएंगे। दूसरे सजदे में जाने के बाद फिर सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबे यही तस्बीह पढ़ेंगे आप, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो इस तरह एक रकात आपकी मुकम्मल हुई। तो एक रकात में 75 मरतबे ये तस्बीह होती है। तो इसी तरह आपको एक रकात होने के बाद फिर दूसरी रकात में जब उठते हैं तो पहले 15 मरतबे वही तस्बीह पढ़नी है और बाकी की नमाज दूसरी रकात भी वैसे ही अदा करनी है जैसे मैंने पहली रकात का बताया। इसमें 75 मरतबे को 150 मरतबे हो गया। अब उसके बाद 2 रकात के बाद जब आप कादा करेंगे, कादा के बाद जब उठेंगे आप तीसरी रकात जब शुरू करेंगे तो बाद उलमा इरशाद फरमाते हैं कि तीसरी रकात में सना फिर एक बार पढ़ना बेहतर है। पढ़ ले तो बेहतर है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर वही तीसरी और चौथी रकात भी सेम वैसे ही पढ़ना है। इस तरह 4 रकात नफिल नमाज है। सलात तस्बीह की नमाज क्या है? नफिल नमाज है। 4 रकात नमाज पढ़ता हूँ नफिल सलात तस्बीह की। इस तरह करके आप नियत बांधे। 4 रकात ये आपकी हो गई, जिसमें हर रकात में 75 मरतबे तस्बीह होती है। तो जुमला पूरे 4 रकात में 300 मरतबे ये तस्बीह होती है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक से मैंने ये चीज़ बयान की। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से पूछा गया कि आपको मालूम है इस नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी जाए? कौन सी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये पढ़ना अफजल है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से जब पूछा गया कि आपको मालूम है इस नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी जाए, तो आपने फरमाया पहली रकात में सूरह तकासुर यानी अलहाकुमुत तकासुर, दूसरी रकात में वल असर, तीसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और चौथी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना बेहतर है। नहीं तो आप कोई भी आप सूरतें पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सलातुत तस्बीह की 4 रकात नफिल नमाज आप शबे कदर में ज़रूर पढ़ा करें। रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने तक जब जितने दिन भी हो आप पढ़ा करें। ऐसे नहीं सिर्फ 27 को ही पढ़ना है, आप हर दिन पढ़ा करें। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आप एक दिन पढ़ा करो या जुमा को पढ़ा करो या महीने में पढ़ा करो या कम से कम उम्र में एक मरतबे इसको जरूर पढ़े। और इस नमाज की फजीलत ये है कि उलमा इरशाद फरमाते हैं, अगर समंदर के झाग के बराबर भी अगर हमारे गुनाह होंगे, अगर इस नमाज के बाद सच्चे दिल से हम तौबा करेंगे, माफ़ी चाहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। तो शबे कदर गुनाहों से माफ़ी की रात है, तौबा करने की रात है। सबसे पहले तौबा करने का तरीका ये है कि अपने दिल में शर्मिंदगी का इजहार करें और गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करें। क्योंकि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, ऐ ईमान वालों अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए, आगे को नसीहत हो जाए, यानी तौबतुन नसूह करो। तो आपने फरमाया मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला से पूछा कि तौबतुन नसूह क्या है? फरमाया मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था। तो आपने फरमाया हुसूर वो गुनाह हो गया
फिर इस पर नादिम हुआ और अल्लाह ताला से माफ़ी चाहना और फिर गुनाह की तरफ माइल ना होना, इसे तौबतुन नसूह कहते हैं। ये तफसीर इब्न कसीर का हवाला मैंने पेश किया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तौबतुन नसूह क्या है? तौबा नसूह ये है कि बंदा अपने गुज़िश्ता अमल पर नादिम व शर्मिंदा हो और इसकी तरफ दोबारा लौटने का पुख्ता इरादा कर ले कि मैं नहीं करूँगा, दोबारा इस गुनाह की तरफ पलटने का इरादा ना करे, यानी आज तौबा करे फिर कर से गुनाह शुरू, तो दिल में शर्मिंदा नादिम भी हो और आइंदा इस गुनाह का हरगिज नहीं करने का पुख्ता इरादा कर ले, ये सच्ची तौबा है। हज़रत जली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तौबा ये है कि बंदा ज़बान से इस्तग़फ़ार करे और दिल में नादिम हो और अपने जिस्मानी आज़ा को आइंदा गुनाह से रोके। हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तौबतुन नसूह क्या है कि बंदे में ये तीनों बातें पाई जाए। जो बंदा गुनाहों से सच्ची तौबा करता है उसमें तीनों बातें पाई जाए। सबसे पहले क्या? बंदा गुनाह को तर्क कर दे, गुनाह को छोड़ दे। दूसरा, जो गुनाह कर चुका है इस पर दिल में नादिम और शर्मिंदा हो। और तीसरा, पुख्ता अज़्म करे, इरादा करे कि आइंदा फिर इस गुनाह को कभी नहीं करूँगा। ये तीन चीज़ें होनी ज़रूरी है। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, तो सलातुत तस्बीह की नमाज ज़रूर पढ़े, तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़े, जितना हो सके इबादत और रियाजत का आप इंतज़ाम करें, एहतमाम करें और सच्चे दिल से अपने गुनाहों से माफ़ी चाहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत कामिला से हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। आप तमामी हज़रात से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है, बिलखुसूस वो हज़रात जो मेरे चैनल पर पहली मरतबे आए हैं या पहली मरतबे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खालदी को आप सब्सक्राइब फरमा लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी जानिब से जो भी वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पर सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं, आपके इल्म दीन में इजाफा हो रहा है, तो आप सदक़े जारिया के तौर पर मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इज़हार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए और 27वीं शब को या रमज़ान की आखिरी तक हर शब हमें बिलखुसूस हमें सलातुत तस्बीह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, सारे आलम के मुसलमान की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए और जितने मुसलमान बीमार हाल है उन तमाम को शिफाई कामिला आजिला अता फरमाए और हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस गज़ा में जितने ईमान वाले शहीद हो रहे हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे बूढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाते हुए उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए और मरने से पहले मुझे और आप तमाम सामईन नाज़रीन को बिलखुसूस एक रमज़ानुल मुबारक हरम शरीफ में मस्जिद नबवी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए और मौत अता फरमाए, मदीना मुनव्वरा में माह रमज़ानुल मुबारक में जुमा के दिन मौत नसीब फरमाए और ख़ातिमा फरमाए, तो ईमान पर ख़ातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।